Welcome back. My name is Yatisha Bhoir, lecturer from Praveen Patil College of Diploma Engineering and Technology. Today we will see the practical number 10 of ICT. In the last video we have seen practical number 9. So we will continue with the practical number 10. So practical number 10 is working with formula and functions in the worksheet. So we will see how to use the formula and functions in the worksheet. In the last practical number 9 also we have seen some formulas, right? So in this video we will continue with the how to use the formula and functions in the worksheet. So as its name suggests, this practical is related with the chapter number 3, that is Microsoft Excel. So in the practical significance, it is written that spreadsheet conditions, functions, formulas or expressions entered into a cell on the spreadsheet software. So what is spreadsheet software? That is nothing but Microsoft Excel. It is used to perform calculation on the values entered to obtain the desired result. So ये यूज क्यों होता है? अगर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज को इंसर्ट किया है तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए एक्सेल में प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज है पहले से ही. So we can use those formulas. We don't have to do the manual calculation like with book and pen. Excel provides us the different formulas based on everything like trigonometry, statistical, financial, logical or conditional. On every topic there are formulas in the Excel. So only we need to learn is how to use those formulas, how to use those formulas, how to define those formulas and how to apply those formulas to the values. So only this thing we should learn from the Microsoft Excel कि formulas को हम लोग कैसे use करें. So in the minimum theoretical background, all worksheet tool gives the facility to have custom formulas. To use a formula in any cell, one needs to begin it with the equal. As we know, कोई भी अगर फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है तो उसके पहले इक्वल का साइन देना इज मैंडेटरी. यूजर कैन मेक यूज प्री डिफाइंड फॉर्मूला, एडिशन, एवरेज, मिन, मैक्स. ये प्री डिफाइंड फॉर्मूला जो पहले से एक्सेल में है उसका फॉर्मेट जो है वो पहले से एक्सेल में है. तो जब हम लोग टाइप करेंगे तो एक्सेल हम लोगों को उसका फॉर्मेट कैसा है वो बताएगा. तो वैसे यूजर को वो पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं. One can make use of advanced mathematical formulas like square root, power and also use conditional statements like if. So this we need to learn from the formulas, how to apply those formulas. Okay, so this is the procedure, how to work with the formula, how to write the function, then how to write a if function. So this is the way to write. Okay, so you read this. Now the next is practical related questions. First is the name the function which displays a row in a column and column data in a row. मतलब ऐसा फंक्शन कोई बताओ जो रो में जो हम लोगों ने डेटा लिखा हुआ है वो कॉलम में कन्वर्ट करेगा और कॉलम में जो हम लोगों ने डेटा लिखा हुआ है उसको रो में कन्वर्ट करेगा. ओके, सो वी अप्लाई दिस. Go to the Excel. Now here I am writing the values in the row. Okay, I'm writing the values in the row. Just zooming it out so you can see it properly. Okay, now the next is what the question is. ऐसे फंक्शन का नाम बताओ जो रो का डेटा कॉलम में और कॉलम का डेटा रो में कन्वर्ट करेगा. सो द आंसर इज ट्रांसपोज फंक्शन. जो ट्रांसपोज फंक्शन है वो रो में लिखा हुआ डेटा है उसको कॉलम में बताएगा, कॉलम में कन्वर्ट करेगा और कॉलम में लिखा हुआ जो डेटा है उसको रो में कन्वर्ट कर सकता है. सो हाउ टू अप्लाई दिस ट्रांसपोज फंक्शन. Write the transpose, select first of all select the blank cell. First select some blank cells. So I will tell you how to apply. So first of all we need to select the blank cell. Now we have three values 100, 200 and 300. So in the E row we will take row of E. Okay, sorry,
column E. We will take column E. Okay, now we have three values. So first of all, we need to select the three columns 1, 2 and 3 because we have three values. After selecting this, go to the formula bar, press equal and then write transpose. Open the bracket and then give the range of the row from this to this. From B5 to D5, this is the row values and we want it in the column format. Okay, so here bracket complete. Now this will be the range from B5 to D5. ये सिर्फ 3 वैल्यूज ही लिखे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे वैल्यूज लिखो तो उसका रेंज ऐसे देना पड़ेगा. ओके, एंड नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखने के बाद, कंप्लीट होने के बाद एंटर को प्रेस करते हैं, राइट. एंटर प्रेस करने के बाद उसमें आंसर आ जाता है. बट नाउ इन दिस ट्रांसपोज फंक्शन वी नीड टू प्रेस कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन and enter button from the keyboard. Not only enter, control, shift and enter simultaneously. Okay, so I am pressing control, shift and enter. Now here there is some error, so we need to resolve this. Control, shift and enter. Here transpose spelling is wrong. It is like this, S was not there. Okay, that's why error came. Now again I need to press control, shift and enter. So here you can see this row data is converted into the column format like this. अभी 100, 200 and 300 रो में था, अभी ये कैसे हो गया, अभी ये column format में हो गया. So like this we need to apply this formula. See, like this. If you didn't understand it, then just resume your video and see it again. Okay, it is not that difficult since it is complicated. Okay, now the next is write the general syntax of if function. if function यूज करने के लिए हम लोग syntax क्या लिखेंगे. okay, for using if function, so write a general syntax. अभी ये if function भी एक फॉर्मूला ही है एक्सेल में. use the if function, one of the logical function, to return a value if the condition is true and another value if it is false. मतलब क्या, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखो, if A2 is the name of the cell. okay, अगर A2 में जो वैल्यू है वो B2 से ग्रेटर है, दिस इज द ग्रेटर सिंबल, राइट, दिस इज द ग्रेटर सिंबल. अगर A2 का वैल्यू B2 से ग्रेटर है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. अगर A2 का वैल्यू B2 से ग्रेटर है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा. एंड इधर क्या लिखा है, टू रिटर्न वन इफ वैल्यू ऑफ इफ अ कंडीशन इज ट्रू. मतलब क्या, अगर कंडीशन अपना ट्रू है तो जो सेल में हम लोग वो फॉर्मूला दे रहे हैं वहां पे फर्स्ट वाला लिख के आएगा, लाइक ओवर बजट. और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई अपनी, मतलब A2 B2 से ग्रेटर नहीं है तो सेकेंड है, एंड अनदर वैल्यू इफ इट इज फॉल्स, इट विल रिटर्न वन वैल्यू इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ इट इज फॉल्स. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सेल में क्या लिख के आएगा, ओवर बजट. अगर ये कंडीशन ट्रू फॉल्स हो गई अपनी, अगर A2 B2 से ग्रेटर है तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे लिख के आएगा ओवर बजट, जहाँ पे हम लोगों ने वो वैल्यू दिया है सेल में वहां पे. अगर A2 B2 से ग्रेटर नहीं है तो अपनी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो अपने सेल में लिख के आएगा ओके. कंडीशन ट्रू, ओवर बजट. कंडीशन फॉल्स, ओके. सो वी विल अप्लाई दिस, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. नाउ यही यूज करते हैं B2 and C2. अभी B5 and C5, sorry, B5 and C5. I want answer in this cell. okay, so I need to write equal to if bracket open. now मुझे चेक करना है कि B से C ग्रेटर है क्या, तो दिस इज B5, राइट. B5 से जो C5 है वो ग्रेटर है क्या, C5. अपने को पता है कि B5 से C5 ग्रेटर नहीं है, मतलब 100 से 200 ग्रेटर नहीं है. सो अपनी कंडीशन क्या होने वाली है, अपनी कंडीशन फॉल्स होने वाली है. ओके, B5 से C5 ग्रेटर नहीं है तो अपनी कंडीशन क्या होने वाली है, फॉल्स होने वाली है. ये अपने को पहले से पता है. तो यहाँ पे लिखते हैं
कुछ तो लिखेंगे हम लोग ABC, दूसरा PQR, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अपनी अगर कंडीशन ट्रू होती तो ये इसमें क्या लिख के आता है ABC, अपने अभी कंडीशन फॉल्स होने वाली है, अगर इसीलिए इसमें क्या लिख के आएगा PQR। ओके, आई एम प्रेसिंग एंटर। सी PQR लिख के आया। अगर अपनी कंडीशन ट्रू होती तो क्या लिख के आता है ABC। तो अभी कंडीशन ट्रू वाला कुछ देते हैं यहाँ पे, जैसे P5 C5 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन लेस तो है ना, B5 C5 से लेस तो है, या फिर ग्रेटर का यूज करो। और यहाँ पे B5 से कौन ग्रेटर है, 300 ग्रेटर है तो D5 दे दो। B5 अभी अपनी कंडीशन ट्रू है, अभी अपनी कंडीशन ट्रू हो गई ना, B5 से D5 ग्रेटर है, B5 से D5 इज ग्रेटर, मतलब 100 से 300 ग्रेटर है ग्रेटर। ओके, नाउ हियर B5, इफ B5 इज ग्रेटर देन D5, P5 से ग्रेटर नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, सो यहाँ पे कुछ ग्रेटर वैल्यू देते हैं पहले, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी अपनी। तो यहाँ पे 600 देते हैं, पूरा फॉर्मूला अपने को हटाना पड़ेगा लिखने के लिए। तो यहाँ पे दो 600। ओके, अभी अपनी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कौन से सेल में चाहिए, ये वाले सेल में आंसर चाहिए, यहाँ पे चला गया वो 600। ओके, यहाँ पे आते हैं, इज इक्वल, इफ बी ग्रेटर देन, अभी अपनी कंडीशन ट्रू है, 600 200 से ग्रेटर ही है, राइट, इक्वल ABC कॉमा PQR। ओके, एंड देन अभी क्या आएगा, अभी B5, अभी 600 से 200 ग्रेटर है, राइट, तो कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू अगर है तो सेल में क्या लिख के आना चाहिए ABC। आई एम प्रेसिंग एंटर। सी अभी ABC लिख के आया। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द इफ कंडीशंस। If you didn't understand it, see it properly again. Okay. So next is the, can we include a function while creating a formula? Obviously we can include a function, right? We can include a function. अब ये function ही हम लोगों ने यूज किया ना, if। तो उन्होंने क्या पूछा, अगर फॉर्मूला हम लोग अगर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो फंक्शन यूज कर सकते हैं, है क्या? यस, वी कैन यूज फंक्शन। अभी हम लोगों ने ये फंक्शन ही यूज किया ना, इफ इज ऑल्सो फंक्शन। ओके, इफ फंक्शन ही है तो यूज किया हम लोगों ने फंक्शन, सो फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इन द प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस, क्रिएट अ वर्कशीट टू डेमोन्स्ट्रेट द रिजल्ट ऑफ 10 स्टूडेंट। मतलब ऐसा एक ऐसा वर्कशीट क्रिएट करो जहाँ पे 10 स्टूडेंट का तुम लोग रिजल्ट दिखा सको। क्रिएट अ वर्कशीट टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट। अभी जैसे हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट का यूज देखा, वैसे एक वर्कशीट में इफ स्टेटमेंट का यूज दिखाओ, ठीक है। मेक अ न्यू वर्कशीट टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ एनी 5 मैथमेटिकल फंक्शंस। ऐसा एक वर्कशीट बनाओ जिसमें कोई भी 5 मैथमेटिकल फंक्शन तुम लोगों ने यूज किए हो। तो जैसे मैक्स है, मीन है, काउंट है, सम है, सब्सट्रैक्शन है, इफ है। तो एक ही वर्कशीट में पांचों फंक्शन यूज होने चाहिए, 5 मैथमेटिकल फंक्शन। ओके, तो ये तुम लोग करके देखो, ठीक है। अगर नहीं समझा होगा तो यू कैन आस्क मी डाउट्स because it was complicated. Okay, so from this practical number 9 is completed. Okay, practical number 10, practical number 10 is completed. Thank you. In the next video we will see the practical number 11. Okay, thank you.